ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸಹಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ, ನಂತರ 2009ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ್ಯವಾಹರಾಗಿ ಹಾಗೂ 2021ರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್ಯವಾಹರಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಅಂಬೇಕರ್ ಅವರು, ಅದರಂತೆ ಸಹ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗಿನವ್ರ ಪರಿಚಯ ತಮ್ಮನ ಪರಿಚಯ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಅಂಬೇಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸೆಸರು. ನಾನು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ನಂತರ ಇವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯ ಮುಂದೆ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಸಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದೊಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ನಟ ವರನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ದುಃಖ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆನೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಲದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದು ಈ ಶಮನ ಮಾಡಲಾಗದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2-3 ಸಾರಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಲದ ಬೈಠಕ್ಕಿನ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ Sunil Ambekar has already given you the curtain raising news, and later on Sri Arun Kumar ji, our Sah Sarkaryawaha, has released the resolution that was passed by the Akhil Bharatiya Karyakari Mandal regarding the violent attack on Hindus and other sections of the society in Bangladesh recently, which is widely condemned, and many others also in Bharat have taken strong exception to such a violent attack. And already the resolution has demanded action from the Bangladesh government, and also we have appealed to the government of Bharat to take necessary steps in order to ensure protection for Hindus and other minority sections in Bangladesh. The Karyakari Mandal, which meets twice a year, one between Dasara and Deepavali, and another is in the month of March. This is full-fledged because it is 3 days only Karyakari Mandal Baitak takes place,
And in the month of March, it is on the eve of the Akhil Bharatiya Pratini Sabha, which is the bigger body. So on the eve of that, we meet in order to finalize the agenda and resolutions for the Pratini Sabha, that is in the month of March. This thing has a situation of the Corona's 20 months as backdrop for this Karyakari Mandal Baitak. ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರೋನಾದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ बहुत सारी शुड आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश कन्नड़ तो करूँगा देर में बी सम पीपल हु मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग कन्नड़ा आई विल मिक्स बोथ ठीक है हाँ हाँ बोल सकते तो इसलिए तो कोरोना के संदर्भ में बहुत सारे सेवा कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने देश भर में किया, लाखों के स्थानों पर किया, उसके विवरण भी हम लोगों ने पहले दिया ही है। इसलिए उस दौरान हम पिछले बार इस प्रकार के कार्यकारी मंडल बैठक नहीं कर पाए थे, इस बार हम कर सके। धारवाड़ के लोगों ने, यहाँ के स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने भी बहुत इस कार्यकारी मंडल को सफल बनाने के लिए सर्व प्रकार के तैयारी भी, सहयोग भी उन्होंने किया और दिया। इसलिए यहाँ के राष्ट्रोत्थान परिषद के कार्यकर्ता तो अपने संघ के स्वयंसेवक है, उनको धन्यवाद देना औपचारिक ही है। इस कार्यकारी मंडल में हमने देखा कि पिछले वर्ष हमारे जो कार्य के विस्तार थोड़ा सा बाधित हुआ था। कोरोना के कारण संघ के शाखाएं ठीक से नहीं लग पाई, लॉकडाउन के पीरियड में तो लगी नहीं, प्रवास और बाकी चीजें भी बाधित रहे, इसलिए अपने कार्य के प्रत्यक्ष रूप से शाखा रूप में जो होना था उसमें थोड़ा कमी आई थी। लेकिन सेवा के रूप में व्यापक कार्य तो हुआ ही था। स्वयंसेवक जो नित्य के शाखा में आते, वर्ष में कुछ कार्यक्रमों में आने वाले स्वयंसेवक भी लॉकडाउन के पीरियड में अत्यधिक सक्रियता से उन्होंने कार्य किया। अब पिछले दूसरे वेव के बाद हम लोगों ने एक विचार किया था, तीसरे वेव यदि आया तो उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए। इसलिए देश भर में हर राज्य में, हर प्रांत में हमने एक दिन भर के ट्रेनिंग कैंप किया था, सो दैट इफ देयर इज ए थर्ड वेव, गांव में फैलेगा, बच्चों के बीच होगा, सब प्रकार के लोग कह रहे थे। उस समय विशेषज्ञों से हमने चर्चा की थी, उसकी तैयारी के लिए देश भर में हमने एक ब्लॉक लेवल पर विलेज लेवल तक ने या लगभग 4 लाख से अधिक लोगों तक वॉलंटियर्स तैयार होने का एक व्यापक प्रमाण में हमने पूरे देश में, तमिलनाडु से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक और नॉर्थ ईस्ट तक हमने ये ट्रेनिंग कैंप इसलिए दिया क्योंकि लोगों को सैनिटाइजर, मास्क ये तो है, कुछ योगासन प्राणायाम के, कुछ काढ़ा पीने के, प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हमने कई ऐसे स्कूल वगैरह को कोरोना केयर सेंटर बनाया, आइसोलेशन सेंटर बनाया, उसके लिए समाज में तैयारी कैसे करना चाहिए, ऑक्सीमीटर, किट्स देना, पीपीई के, बाकी के ऐसे लगभग 1.5 लाख किट सेवा इंटरनेशनल के द्वारा हमने देश भर में बांटा भी है। ये सब किया, अच्छी बात है, वैक्सीनेशन भी हो गया। इसलिए अभी परिस्थिति दोनों प्रकार है, कुछ जगह पर केरल जैसे, इसमें महाराष्ट्र में अभी भी स्थिति है। यदि स्थिति ऐसे दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति हो गई तो संघ के स्वयंसेवक इसको सामना करने के लिए समाज के सहयोग के साथ साथ समाज को सहयोग देने के लिए हम तैयारी रखे हैं। तो ऐसे परिस्थिति ना बने, ये ईश्वर से प्रार्थना है, बने तो भी हम तैयार हैं।
दूसरी बात, इस समय में कार्य के विस्तार के दृष्टि से संघ के कार्य हमारे, जैसे मैंने कहा था, लगभग एक पिछले बार 8-10 हजार स्थानों पर हमारे लॉकडाउन के कारण कार्य जो नहीं हो पाया था उसको हमने पार करके इस बार नाउ वी आर हैविंग वर्क द एक्चुअल डेली शाखास इन 34,000 places, 33,900 something, roughly 34,000. वीकली मीटिंग्स, वीकली शाखा जो होते हैं वो लगभग हमारे 12,780. तो इस दृष्टि से अपना कार्य मंथली और फोर्टनाइटली जो होते हैं वो 7,900. तो अराउंड 55,000 प्लेसेस वेयर संघ शाखा डेली, वीकली और फोर्टनाइटली और मंथली ऐसे चलते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा 34,000 इज डेली शाखास. This is place. Number of shakas. In one place there may be 2, 3, 4 shakas. In big cities more. So number of shakas is around 55,000. 54,382. 54,382. Now 2025 will be the 100th year of Rashtriya Swayamsevak Sangh. However, every 3 years once we plan for the expansion plan होता है हमारा संगठन के विस्तार के. इस दृष्टि से हमने जो सोचा है वो मंडल तक हमारे काम होना चाहिए. अभी खंड जो है, ब्लॉक्स जो है, 6,483 ब्लॉक्स में हमारा 4,683 ब्लॉक सेंटर्स पे अनदर लगभग 5,683 ब्लॉक्स आर कवर्ड. जो नहीं कवर हुए थोड़ा मिजोरम में, नागालैंड में, कश्मीर के वैली में, ऐसे कुछ जगह पर, लक्षद्वीप में, ऐसे जगह पर अपनी शाखा नहीं है, इसलिए वो गैप है ब्लॉक्स के लेवल पे. तो मंडल के दृष्टि से भी नियरली हमारे जो काम है 32,687 मंडल्स, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं, न्याय पंचायत कहते हैं, मंडल कहते हैं, ऐसे जगह के जो मंडल बनते हैं. एक मंडल में सामान्यतः एन एवरेज 8 गांव, 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के हैं. तो इतने हमारे काम हैं. 910 जिले हैं, उसमें 900 जिले तक अपना काम प्रसारित हुआ है लगभग. कुछ जगह पर नित्य शाखा नहीं चलती जैसे मैंने बताया, वो सब करके 560 जिले ऐसे हैं जिन जिले के जिला सेंटर में, हेडक्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, 5 शाखाएं हैं. और 84 जिला ऐसे हमारे हैं उस जिले में सभी मंडलों में शाखा है 100%. हम इसको विस्तारित करते हुए आने वाले 3 साल में सभी मंडल तक पहुंचना चाहिए, यह हमने विचार किया है. उसमें लगभग 60 to 70% ऑफ द विलेजेस ऑल्सो शुड बी कवर्ड. तो 100% मंडल को हम 2024 के 2024 मार्च तक पहुंचने के लिए हमारे कार्य विस्तार की योजना बनी है. इस कारण से संघ के 100 वर्ष होने के दृष्टि से समय देने वाले कार्यकर्ता 2 साल न्यूनतम, मिनिमम 2 years, ऐसे फुल टाइम वर्कर्स करने वाले कार्यकर्ताओं के भी हमने विचार किया है. अभी इस मीटिंग में हमने तय किया है उसकी संख्या हमको मार्च तक आएगी. 2022 to 2025 के बीच में मिनिमम 2 years देना है. तो इसलिए अभी सभी प्रांतों ने इस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे. अपने अपने राज्य में जाने के बाद संख्या पूर्ण करेंगे. तो हर खंड में एक फुल टाइम वर्कर होना है तो लगभग 6,000 होंगे. तो ये हमारी योजना है कार्य विस्तार के दृष्टि से. एक है अपने कार्य कोरोना में, जैसे मैंने कहा, होने पर भी कुछ उत्सव होते हैं, गुरु पूजा, रक्षाबंधन, विजयदशमी, ऐसे उत्सव में हमने जो देखा
उसमें 1,59,938 इतने स्थानों पर हम उत्सव कर सकें। नित्य शाखा इतने नहीं है तो भी हमारे संपर्क रहता है। हमारे स्वयंसेवक हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार वहां जाते हैं, किसी न किसी प्रकार के सेवा कार्य करते हैं, किसी संपर्क करते हैं, वहाँ भजन मंडली होती है, वहाँ किसी प्रकार के एक स्वच्छता के कार्य लेते हैं। हमारे गौ सेवा, ग्राम विकास, पर्यावरण रक्षा, ऐसे हमारे जो भिन्न प्रकार के आयाम के काम हैं, उनमें से कोई ना कोई काम चलता है। आरोग्य मित्र का काम चलता है। इस कारण से हमारे संपर्क है। वहाँ डेली शाखा नहीं होती होगी, लेकिन हमारा संपर्क है। इसलिए वहाँ 1,05,938 प्लेसेस पर इस बार हम गुरु पूजन का कार्यक्रम कर सके। तो दिस इज अवर रीच एट प्रेजेंट। तो ये मैं आपको एक बार जानकारी दूँ ऐसे सोचा। 2-3 कार्यक्रमों के संदर्भ में हमने विचार किया है। एक अभी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव चल रहा है। स्वाभाविक है, देश भर में, दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के लिए यह आनंद का विषय है। तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम को संघ के स्वयंसेवक समाज के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं, इनके साथ जुड़कर भी काम करेंगे। स्वतंत्र रूप से भी संघ के स्वयंसेवक शाखा में करेंगे। तो एक दिन का कार्यक्रम ऐसे नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी उन्होंने विचार किया है, बिहार में किया है, भारत माता पूजन के कार्यक्रम, रैली वगैरह करेंगे। कुछ जगह पर साहित्य करेंगे, कुछ जगह पर प्रदर्शनी। स्वतंत्रता आंदोलन के, अब उदाहरण के लिए काला पानी में जो लोग देश के लिए अपने जीवन व्यतीत किए, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे लोगों के प्रदर्शनी लगाना। देश में बहुत सारे महिलाएं, जैसे कर्नाटक में रानी अब्बक्का, कित्तूर चेन्नम्मा के नाम प्रसिद्ध है, रानी अब्बक्का देवी, उनके नाम प्रसिद्ध नहीं है। वेलु इसमें तमिलनाडु में नाचियार, उन्होंने युवतियों की सेना खड़ी की, आर्मी, उनके बारे में जानकारी नहीं। रानी गैडेनलू नागालैंड में, ऐसे महिलाओं के, समाज के सभी प्रकार के लोगों ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होकर काम किए, समाज के सभी वर्गों ने किया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के एक बहुत बड़ा इतिहास है। 1857 से लेकर 1947 तक उन्होंने किया, अद्भुत कार्य किया है। इन सारे चीजों को समाज में लाना चाहिए, क्रमांक 1। इसलिए उनके सम्मान देना चाहिए, इतिहास में उनका नाम आना चाहिए। यह, इसके लिए साहित्य, प्रदर्शनी, कार्यक्रम, सेमिनार वगैरह। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा है, ये दुनिया में ही एक विशिष्ट आंदोलन है। अहिंसा सत्याग्रह से लेकर सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह के क्रांतिकारी तक सब प्रकार के आंदोलन हुए। क्रमांक 1 लंबे समय तक चला, और इस आंदोलन में पूरे देश की एकात्मता यह प्रकट हुआ। लाल बाल पाल या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एक राज्य के नहीं थे, एक जाति के नहीं थे, एक भाषा के नहीं थे। तो पूरे देश एकात्म हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाली है ऐसे लोगों को नहीं था। तमिलनाडु में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम आज भी घर में लोग रखते हैं नए बच्चे को। देश की एकात्मता को अपने स्वतंत्रता आंदोलन ने अद्भुत ढंग से प्रकट किया है। तो इसलिए यह जो आंदोलन है, यह इट वॉज ऑल राउंड, ऑल साइडेड, ऑल डायमेंशनल एक आंदोलन था। नॉट ओनली इट वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, उसमें और एक है भारत के सेल्फहुड, भारत के स्वतंत्र जो कहते हैं, स्वाधीनता जो कहते हैं, उसमें स्व क्या है। इसलिए स्वदेशी आंदोलन उसमें जुड़ गया, स्वभाषा के जुड़ गया, स्व संस्कृति के जुड़ गया। इसलिए भारत के स्व का अर्थ केवल अंग्रेजों के यहां से भगाना चाहिए इतना ही नहीं था, भारत की आत्मा को जागृत करना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद से लेकर अंबेडकर जी, प्रत्येक व्यक्ति ने, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे नाम हैं, स्व के बारे में जागृति लाना। इट वॉज
not only a struggle against the foreign rule, but it was also a struggle and a fight and an effort to rouse the feelings of selfhood, nationhood. इसको समाज के सामने लाना चाहिए। तीसरी बात हम करना चाहते हैं, इतिहास तो अच्छा ठीक है, कहेंगे 75 ईयर्स में देश ने प्रगति जो भी किया है और आगे करना है, इसलिए वर्तमान पीढ़ी को, द प्रेजेंट जनरेशन, वो संकल्प लेना चाहिए भारत को हर मौके, हर मोर्चे पर, हर डायमेंशन में हम दुनिया में एक श्रेष्ठ देश के नाते स्थापित करने के लिए हमें संकल्प लेना, रिजॉल्व लेना। इसलिए भी यह कार्यक्रम को, दूसरा और एक कार्यक्रम देश भर में होता है, वो गुरु तेग बहादुर जी के 400 वर्ष पूर्ण होने पर, 9वें गुरु थे सिख पंथ में, उनके 400 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम सिख गुरुद्वारा, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं सबसे मिलकर उसके भी कार्यक्रम करते हुए गुरु तेग बहादुर जी के जो बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के दर में अपने बलिदान दिए, उनके नाम से यहाँ के लोगों को जानकारी होगी ही। दिल्ली में जो चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, उसी जगह पर गुरु तेग बहादुर जी के सिर काटकर कत्ल कर दिया था। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिए, उनकी स्मृति पर गुरुद्वारा वहां खड़ा किए, दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज। तो इसलिए ऐसे एक हमारे धर्म के एक गुरु, उन्होंने बलिदान देकर देश के रक्षा, धर्म की रक्षा की है, उनकी स्मृति और प्रेरणा ये दोनों होने चाहिए वर्तमान पीढ़ी को इस दृष्टि से। बाकी अपने कार्य जो है उसमें सामाजिक परिवर्तन के एक आयाम को, एक है समाज के अंदर के अस्पृश्यता, व्यसनाधीनता, कन्या भ्रूण हत्या, ऐसे अपने समाज के कुछ जो कुरीतियां हैं इसको दूर करना चाहिए। समाज की रक्षा भी होनी चाहिए। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, ग्राम विकास, परिवार प्रबोधन यानी कुटुंब प्रबोधन, ऐसे विषयों को हम इसमें किसी के बारे में कोई विरोध का नहीं, ये समाज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक पॉजिटिव चेंज, सोशल चेंज, ये लाने के प्रयत्न इतने अपने संघ के कार्य के जो व्याप है। सेवा कार्य एक है, हम सेवा बस्ती में जरूरतमंद लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के सेवा कार्य करना, वो तो एक करना चाहिए। जरूरतमंद लोग नहीं है, गरीब नहीं है, अशिक्षित नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। जाति भेद, अस्पृश्यता, उपभोगवाद, परिवार टूटते हैं, तो इसलिए इन चीजों को भी रक्षा करना, इसको ठीक करना, ये सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के कार्य, इस विषय को जोर देने के लिए संघ के स्वयंसेवक का आने वाले 3-4 वर्षों में विशेष प्रयास करेंगे, क्योंकि संघ के 100 वर्ष होने हुआ, इस विषय को जोर देने का हमने इसमें प्रयत्न किया। इस कार्यकारी मंडल बैठक में हमने इस विषय के बारे में कुछ विस्तृत योजना बनाने के लिए कुछ बिंदु यहाँ आए हुए लोगों के सामने रखा है, उसकी तैयारी वो करेंगे। तो ये 2-3 विषय इस बार हमने इस बैठक में हमने किए हैं। बाकी देश भर से आए हुए लोगों ने कोरोना के अनुवर्तन के कुछ विषय भी यहाँ रखा। एजुकेशन एंड जॉब्स वर अफेक्टेड, इसलिए अभी कई जगह पर स्किल के आधार पर कुछ होगा। यहाँ भी हुबली के पास ही जैसे इचलकरंजी का है, यहाँ के है साड़ी गांव में, घर से कौन से गांव हैं, हाँ, वहाँ के साड़ी के उसमें ट्रेनिंग देकर उसके मार्केटिंग के लिए हमारे स्वयंसेवकों ने प्रयत्न किया।
ऐसे जगह जगह पर यह करना चाहिए। स्थानीय स्किल के आधार पर अब दीपावली मिट्टी के दिया बनाओ, लाखों के संख्या में मिट्टी के दिया बनाना, इस कारण से कुछ लोगों के रोजगार मिलेगा, एक लोकल स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ऐसे तरह तरह के चीजों को लॉकडाउन पीरियड में लोगों के स्वावलंबन के लिए हमने प्रारंभ किया। रोजगार भारती ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश वेस्टर्न पार्ट में उन्होंने एक विषय किया है, लोगों के बैंक से लोन दिलवाना और इस प्रकार के स्किल ट्रेनिंग देकर उनको कुछ ना कुछ करना, ये सारे कार्य किए हैं। इसका हम डॉक्यूमेंटेशन करके कई चीजें केवल लॉकडाउन पीरियड में हो गया अब छोड़ दो, ऐसा नहीं करना, आगे भी बढ़ा सकते हैं। कई लोग शहर से गांव में जाकर अभी गए और उनका कहना है हम गांव में ही रहकर कुछ काम करेंगे, तो इसलिए ऐसे लोगों को भी कैसे हो सकता है, इसलिए आर्थिक क्षेत्र के संगठनों से बात करके हम रोजगार सृजन इस विषय में आने वाले दिनों में अधिक प्रयत्न करना। अभी तो एक परिस्थिति के कारण हमने कुछ प्लानिंग तो किया था, वो तो हो गया 4-5 महीने 8 महीने 10 महीने के लिए, लेकिन इसको स्थायी रूप से करना है, इस दृष्टि से कुछ प्रयत्न करना है। रोजगार सृजन ऐसे एक विषय को भी हमने आगे बढ़ाया है। तो इस प्रकार से इस कार्यकारी मंडल बैठक में कुछ विशेष विषय होता, वैसे कहे तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आज आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया और अभी तक तो आपने देखा ही है, तो कुछ बातें आपके सम्मुख रखना भी स्वाभाविक मेरा कर्तव्य था। तो बहुत बहुत धन्यवाद।